Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Let's continue our chapter 2, Diversity and Discrimination from class 6 Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 2 from page number 21. So today we'll start with striving for equality. Striving for equality means समानता के लिए प्रयास. The struggle for the freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए संघर्ष भी इसमें शामिल है, ये इक्वालिटी की लड़ाई में शामिल है. तो उन लोगों के बड़े समूह का संघर्ष जिन्होंने न केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बल्कि उनके साथ समान रूप से दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और किसानों के साथ होने वाली असमानताओं के खिलाफ भी ये एक तरह का संघर्ष ही है. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much as right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. तो जैसा कि पहले बताया गया है कि कई दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए खुद को एक साथ संगठित किया था. महिलाओं ने मांग की उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए. किसानों और आदिवासियों ने खुद को साहूकार की मुट्ठी से छुड़ाने के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनसे जो ब्याज वसूला गया तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. तो 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना था तो हमारे नेता भी विभिन्न प्रकार की असमानताओं से काफ़ी ज़्यादा वो चिंता में थे. जिन लोगों ने भारत का संविधान लिखा था, जो एक डॉक्यूमेंट था जिसमें नियमों का पालन किया गया था, बहुत सारे नियम लिखे गए थे जिसके द्वारा राष्ट्र कार्य करेगा, मतलब पूरे देश में उसी नियम के हिसाब से काम होंगे, उन तरीक़ों के बारे में जानते थे. तो हमारे समाज में भेदभाव का व्यवहार किया गया था और लोगों ने इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था. तो इन स्ट्रगल्स में कई नेताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलितों के अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था. So these leaders set out a vision and goals in the Constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. तो इसीलिए इन नेताओं ने संविधान में एक दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाए. सभी व्यक्तियों की इस समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखा जाता है जो हम सभी को भारतीय बनाता है, क्योंकि सभी के पास समान अधिकार और अवसर है. अनटचेबिलिटी को कोई एक अपराध के रूप में देखा जाता है और इसको कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है. लोग जिस तरह का काम करना चाहते हैं उससे चुनने के लिए स्वतंत्रता है. सरकार सभी लोगों के लिए है. इसके अलावा और इस तरह सरकार ने मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए समानता के इस अधिकार को महसूस करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने के लिए सरकार पर जिम्मेदारी भी रखी है.
The writers of Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. तो संविधान के जो राइटर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो उन्होंने कहा है कि समानता सुनिश्चित करने में विविधता के लिए सम्मान एक महत्वपूर्ण तत्व था। जो सम्मान है मतलब हर किसी का जो रिस्पेक्ट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहारों को मनाने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा, धर्म या त्यौहार का पालन करना ज़रूरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि हर किसी को हम ये कहें कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी धर्मों के साथ एकदम समान व्यवहार करना चाहिए। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया जहाँ विभिन्न धर्मों और धर्मों के लोग रहते हैं, भेदभाव के डर के बिना अपने धर्म का पालन करने और उनका पालन करने की उनको छूट है, फ्रीडम है। तो ये हमारी एकता के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आप देखा जाता है कि हम सभी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. तो हालांकि ये आदर्श जो है ये हमारे संविधान में एक निहित है, लेकिन चैप्टर हमें ये जो चैप्टर है ये बताता है कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो आज की डेट में भी मौजूद है। तो समानता एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमें कंटिन्यूस हमें क्या करना है, प्रयास करते रहना है। तो ना कि कुछ ऐसा जो अपने आप हो जाएगा, हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सरकार द्वारा जो ये जितने भी पॉजिटिव जो काम किए जा रहे हैं, जो पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो सभी भारतीयों के एक वास्तविकता को बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।